So let's start like bioinformatics. So bioinformatics is actually the union of like biology and informatics. So the union of like, if you can see, the union of biology and informatics. So biology plus informatics, so that means the bioinformatics, and that's the technology that uses computers for storage, retrieval, like to dig out, retrieval, to manipulate means you want to change, and to distribute the information, distribution of information related to biological macromolecules. And biological, what are biological macromolecules? Like DNA, RNA, proteins, they are biological macromolecules. So in bioinformatics, we will be dealing only with these three molecules, biological molecules, like macromolecules. So bioinformatics is the study of these three molecules, DNA, RNA, and proteins, by storing, retrieving, manipulating, distribution of the information related to these. And that's actually the use of computers for these molecules. And next is the emphasis here is on computers, because most of the tasks in the genomic data analysis, like they are highly repetitive, mathematically complex. So the use of computers is absolutely indispensable in mining genomes, and information gathering and knowledge building. Rabia, do you want to like ask question? No, sir, by mistake. हुआ. Acha, no worries. Okay, so um, the bioinformatics is the unified discipline formed from the combination of biology, computer, mathematics, and statistics even. So that is the discipline that combine computer sciences, biology, maths, all these things, this stuff. So by combining all these, so it gives rise to another like major domain, and that is bio. Like what will be the difference? So okay, so डिफरेंस क्या होगा कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में. सो ये डिफरेंस समझने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली. लाइक वी आर स्टडिंग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और वी आर स्टडिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स. लेट्स चेक दैट. इसके बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. वन ऑफ दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज लिमिटेड टू सीक्वेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनालिसिस ऑफ genes, genomes, and their corresponding products, and is often considered computational molecular biology. हम जो पढ़ रहे हैं that will be like considering genes, genomes, and corresponding products जो हैं वो हम किस में पढ़ रहे हैं? Bioinformatics में. So bioinformatics is actually बायोलॉजी में भी हम जीन्स और जीनोम्स और ये पढ़ रहे होते हैं ना. सो कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसको कह सकते हैं. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है? दैट इज लाइक अ ब्रॉडर टर्म. Computational biology, however, encompasses all biological areas that includes computation. For example, mathematical modeling of ecosystem. So वो हम नहीं पढ़ते. Population dynamics, phylogenetic construction using fossil आपकी आवाज फिर खराब. तो फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में. आवाज खराब हो गई है. अब ठीक है. यस सर, आपकी आवाज बार बार बीच में चली जाती है. ओए होए, ये असल में ये तो इशू है. अच्छा, अब देखें, वैसे जब मुझे समझ नहीं आ रही क्यों आवाज डिस्टॉर्ट हो रही होती है. अच्छा, अब ठीक है. आपका कनेक्शन अनस्टेबल है ना, इसलिए. हाँ, मैं भी. ओके, सो कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो दैट इज ब्रॉडर फील्ड. ठीक है, इस बात की किसी को समझ आई तो प्लीज एक्सप्लेन कर दें. कौन एक्सप्लेन करेगा? सर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो सिर्फ लिमिटेड है सीक्वेंस और स्ट्रक्चर के लिए, जीन्स और जीनोम्स और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसको हम लोग जो है वो कंप्यूटेशनल मोलेकुलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं. लेकिन जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ते हैं, इकोसिस्टम वगैरह की, पॉपुलेशन डायनामिक्स, और लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम जीन्स और जीनोम्स तक की लिमिटेड रहते हैं. और 3 मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स. That will be in the bioinformatics. Yes.
Okay, that's good, Maida. Okay, and next is components of bioinformatics. तो उसके components क्या हैं? Biological data, algorithms, computers. So हमारे पास biological data होता है. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना कि like we have biological data, हमारे पास sequence मौजूद होते हैं. So that all will be in biological data. अब हमने इस बायोलॉजिकल डेटा को कंप्यूटर के साथ लिंक करना है, तो कंप्यूटर के साथ लिंक करने के लिए वी नीड एल्गोरिदम्स. एल्गोरिदम्स जो है वो लाइक दे विल कंबाइन biological data. They will make computer understand our biological data and will analyze this biological data with the certain tools. अब algorithms क्या हैं? We will be talking about this in detail. Like ये connecting between the connected biological data with the computers, and these are different. Like we will be talking about this in detail actually. अब देखें origin of databases. अब origin of databases कब कहाँ से शुरू हुए? Like in the computer, in the computer field we have databases, like different databases, and we need databases like just like a telephone directory. We have telephone directory, or we have a contact list, and that is actually a database. आपके मोबाइल में जो contact list है, that is actually a database of like numbers, like contact numbers जो है आपके पास, जो contacts है, contacts का database है आपके पास, ठीक है, आपके मोबाइल में. So we can like store that database at cloud में भी store कर सकते हैं. That can be stored in the cell phone, that can be stored on the SIM. So that is actually the database. समझ आ रही कि नहीं? Yes, sir. So same is the case with the sequences. So sequences का जो database है, जहाँ पे हम genes, proteins के sequences add करते होते हैं, like different, तो वो like that is actually the database for that. In 1967, first database of available sequences of genes and proteins was developed in its preliminary form. और protein data bank जो है PDB, this is too much important, was established in 1972 with a collection of 10 X-ray crystallographic protein structure. एक टेक्निक है जिसको कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में क्या है कि प्रोटीन्स को क्रिस्टलाइज फॉर्म में लिया जाता है, मींस के लो टेम्परेचर पे उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, और फिर एक्सरेज रेडिएशन पास करके उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाता है. बिकॉज इन द प्रोटीन साइंसेस, इन द प्रोटियोमिक्स, स्ट्रक्चर इज टू मच इम्पोर्टेंट. उसका लाइक बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जिसमें म्यूटेशंस होती हैं, और सीक्वेंस लेवल पे उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बन के तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है. सो दैट मीन्स स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट. तो अगर म्यूटेशन आ जाए तो हमने फिर उसके बाद स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं. सो देयर वाज सीक्वेंस डेटाबेसेस. सीक्वेंस डेटाबेसेस 1967 में सीक्वेंस डेटाबेसेस आ गए जीन्स और प्रोटीन्स के. उसके बाद स्ट्रक्चर का डेटाबेस शुरू हुआ 1972 में, एंड दे हैव द डेटाबेस हैज 10 X-ray crystallographic protein structures from the first from in 1972, and उसके बाद वो database बढ़ता गया. अब हम we will be using the PDB in detail. You will see that there are millions of proteins there in the database, and how much they are important. We will be like studying that as well. So and you will know with the time. And Swiss Prot, actually the protein sequence database, begin in 1987. So Swiss Prot protein sequence का database है, and that was started in 1987 because it has been annotated. It has different functions like associated with the proteins. So proteins की सारी properties जो है वो वहाँ पे दी गई होती हैं sequence के साथ. So biological database is a database, a structured. What a database is, actually a database is a structured collection of information, like that will be like some that needs to have some structure. For example,
टेलीफोन डायरेक्टरी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी को अगर आप देख लें, आप अपने मोबाइल में देख लें, सो लाइक मोबाइल जो कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टरी है, दैट हैज सम स्ट्रक्चर, that could be like in alphabetic order or some other like sequence. So वो जो है एक specific structure उसका होता है, like you can know the sequence of the things, like you can understand the structure of the directory. Like अगर आपको पता हो कि alphabetic order में है, तो आपका कोई for instance नाम है, तो उसको सर्च भी कर सकते हैं वहाँ पे उस ऑर्डर में, उस साइट पे जाके उस like नंबर पे जाके आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं. So like you that's easy to retrieve, that's easy to go in through the database. So database का एक specific structure होना चाहिए. So a database is a structured collection of information. So collection of information तो है, लेकिन that is structured actually, like that has a specific sequence, a specific it needs to have a specific structure. So and a database consists of basic units called records and entries. So records होंगे या उसको entries भी कहेंगे. So उसके basic unit उसका क्या है database का, उसका basic unit records है या उसको हम entry कहेंगे. So entry इसका basic unit है, ठीक है. And each record consists of field. तो तमाम records या उसके entries जो हैं उसमें फिर आगे जाके fields होंगे which hold predefined data related to the record. So उसमें predefined data होगा, like आप like if you can see and if you can go into your mobile and in the contact directory, so there will be contacts. So contacts are actually they are records, or we can call that entries. So आप एक contacts को open करें तो आपको वहाँ पे उसका mobile number, उसका phone number, उसका like email address and so many things that will be saved there. So yeah, different entries and so उसके जो predefined, so उनको फिर हम fields कहेंगे उसके अंदर. So एक entry के अंदर फिर different fields होंगे like mobile, like home, PTCL number, like email address. So ये सारे जो हैं ये fields हो गए. So एक record के अंदर different fields होंगे and same apply on like biological databases. Biological database पे भी यही apply होंगे, same things. And if you can see, for example, a protein database would have protein sequence as a record and protein properties as fields. So अब ये देखें, ये प्रोटीन लाइक सीक्वेंस जो है ये रिकॉर्ड्स होंगे, ये प्रोटीन सीक्वेंस के वो हैं तो ये रिकॉर्ड्स होंगे. एंड these are the fields like नेम क्या होगा इस सीक्वेंस का, इसकी लेंथ कितनी होनी है, ये सीक्वेंस होगा क्या, एंजाइम है कि नहीं है, इसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके फील्ड में होंगे. सो इस साइड पे रिकॉर्ड और ये जो है ये इसके फिर फील्ड्स होंगे, उसी एक रिकॉर्ड की फिर डिटेल्स होंगी. समझ आ गई है? Or Yes. one more thing, accession number. We will be talking about accession number everywhere. You will hear about this word, accession number. So accession number is unique identifier of a record. So किसी भी record का जो unique identifier है उसको हम accession number कहेंगे. यहाँ पे accession number QA001 है. अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके सारे information हमारे पास आ जाएंगे. So इसको हम accession number कहेंगे. So accession number है क्या? That is unique identifier of a record. ये किसी भी record का unique identifier है, because ये unique क्यों है, किसी और का ये नाम नहीं होगा. ठीक है, so ये unique like designator है या identifier है for specific records. Am I clear? Yes, Yes, sir. Okay, and अगर हमें नहीं पता एक्सेशन नंबर क्या है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? हमने किसी प्रोटीन को फाइंड करना है लेकिन हमें नहीं पता तो उसका हाँ, ये accession आगे number- जाके हम कुछ टूल्स पढ़ेंगे, ब्लास्ट और इस तरह की चीजें, जिसमें हम अब हमारे पास अगर सीक्वेंस है तो उससे हम रिट्रीव कर सकते हैं उसका एक्सेशन नंबर. अगर हमारे पास एक्सेशन नंबर है उससे हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट प्रोटीन का नाम है या सीक्वेंस का नाम है, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं. वी विल बी हैविंग ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस स्टफ इन डिटेल, डोंट यू वरी फॉर दैट. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. जस्ट इस स्टेज में हम उसके जो लाइक क्या क्या चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट पढ़ना चाह रहे हैं कि लाइक व्हाट कुड बी लाइक
like what are the properties, what are the nomenclature, what are the names we will call, like by which we can identify these things. Like इसके बाद जब accession number का हो तो accession number is the unique identifier, तो हम उससे फिर identify कर सकते हैं. And your question we will be dealing in the coming classes, like ये details में यही सारी चीजें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यही है, like सारा कुछ. ठीक है, अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं है तो हमने उसका स्ट्रक्चर किस तरह मालूम करना है कि स्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं है. लाइक कोई स्ट्रक्चर मौजूद है, उसका सीक्वेंस वहां से किस तरह निकालना है. लाइक we can do that, we can, like that's easy, that's a big deal, that the whole course is meant for that. ठीक है. Okay, sir. Okay, and okay, so biological databases, there are several types of biological databases. Some are like sequence database, sequence analysis, sequence databases हैं. Sequence databases में क्या होगा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ sequences होंगे मुख्तलिफ उसके accessions के. And sequence analysis, like हमारे पास कुछ databases होंगे जहाँ जो हमें sequence analysis करके दे, एक sequence हम उसको दें और वो analyze करके दें कि ये क्या sequence है, इसकी properties क्या है. अच्छा, कुछ जो है वो literature databases हैं जो हमें एक स्पेसिफिक, लाइक हम एक नाम दे दें और उस पे हमें पूरा लिटरेचर सर्च करके दें. लाइक पबमेड, तो मैं अगर वहां पे कुछ सर्च करूंगा तो वो अपने डेटाबेस में से निकाल देगा कि इस पे कितने पेपर्स अवेलेबल हैं, कितना लिटरेचर अवेलेबल है. लाइक गूगल स्कॉलर, लाइक कुछ भी देख लें तो वो आपको लाइक उसका लिटरेचर निकाल के दे देगा. अब स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर निकाल, फॉर इंस्टेंस कोई सीक्वेंस का नाम दें और वो आपको स्ट्रक्चर बता देगा कि इसका स्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होना है. तो स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस भी है. मेटाबॉलिक पाथवेज डेटाबेसेस भी हैं. लाइक कोई भी लाइक कंपोनेंट दे दें किसी भी पाथवे का, एंड लाइक किसी कोई भी प्रोटीन दे दें और उसने आपको मेटाबॉलिक पाथवे दे देना है कि इसका पाथवे क्या होना है. एंड देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस भी हैं. एंड दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुअली डेटाबेसेस. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज इन डिटेल इन द कमिंग स्लाइड्स, इन द कमिंग लाइक लेक्चर्स. ठीक है. Yes, sir. Should I go further? Yes, sir. Like Yes, sir. specialized No, sir. databases से like मतलब है कोई एक वायरसेस का कोई स्पेसिफिक डेटाबेस हो, फंजी का कोई स्पेसिफिक डेटाबेस हो, फंगी का, लाइक बैक्टीरिया का कोई स्पेसिफिक डेटाबेस हो, कोई भी प्रोटीन्स हैं, लाइक कोई हीमोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज हैं, उनका स्पेसिफिक डेटाबेस हो. इस तरह के डिफरेंट लाइक डेटाबेसेस, देयर आर सम सर्टेन स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस एज वेल. ठीक है. So by moving further, a minimal content of an entry in a sequence database में एक कोई भी entry, like हम पहले record या entry को कह रहे थे ना कि record या entry हो, so उसका minimal content क्या होना चाहिए, like minimum information कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए. तो उसका sequence होना चाहिए. अगर sequence नहीं है, मीन्स के ATGC या कोई वो सीक्वेंस मौजूद नहीं है DNA RNA का या प्रोटीन का, सो वो एंट्री कंसीडर नहीं होनी. सो देयर शुड बी द सीक्वेंस ऑफ लाइक प्रोटीन, DNA एंड RNA. एक्सेशन नंबर होना चाहिए. टेक्सोनोमिक डेटा होना चाहिए, लाइक हमें पता हो कि ये लाइक इफ दैट इज लाइक प्रोटीन, सो व्हाट प्रोटीन इट करस्पॉन्ड, लाइक ये ह्यूमन का है, ये रैट का है, ये प्लांट का है, लाइक ये इंसेक्ट का है, ये किसी प्रोकैरियोट का है. सो हमें टेक्सोनोमिक डेटा भी वहां पे मौजूद हो, रेफरेंसेस मौजूद हो. लाइक अगर मैं चाह रहा हूँ कि लाइक मुझे पता हो कि इस तरह के पेपर कहाँ से मिल सकते हैं या इस पे कोई काम हुआ है, तो मैं वहां से इसकी डिटेल्स देखना चाहता हूँ, तो वो वहां से मैं निकाल सकूँ रेफरेंसेस के थ्रू. ठीक है. अच्छा, एनोटेशन या क्यूरेशन होनी चाहिए. लाइक कोई सीक्वेंस है तो वो एनोटेटेड हो कि लाइक पता चले कि ये कितने सीक्वेंसेस, कितने लॉन्ग बेस पर लॉन्ग है, ये कहाँ से कहाँ तक है. लाइक मुझे अगर मेरे पास इंसुलिन का सीक्वेंस है और एक ऑनलाइन मेरे पास इंसुलिन की एक एंट्री है, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि इंसुलिन का सीक्वेंस है, तो वहां पे होना चाहिए कि लिखा हुआ हो कि ये पार्शियल है, कंप्लीट है, स्टार्ट टू एंड तक है या दरमियान से कहीं से शुरू है. तो प्रॉपर एनोटेशन हो, लाइक प्रॉपर दिया हुआ हो
कि अच्छा कोडान्स कहाँ से शुरू होंगे, ATG से हैं या प्रोटीन्स कौन से हैं, सो इसमें कौन सा पॉलीपेप्टाइड चेन बनना है और प्रोटीन्स कौन से बनने हैं, ठीक है। सो लाइक न्यूक्लियोटाइड नंबर सारी चीजें वहां पे दी हुए हों, सो एनोटेशन और क्यूरेटेड हो, एनोटेटेड या क्यूरेटेड हो, और कीवर्ड्स दिए हों, ठीक है, और क्रॉस रेफरेंसेस हो। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि जिस ऑथर ने इसको सबमिट किया है डेटाबेस में तो उसने अपना एड्रेस भी दिया हो, कांटेक्ट भी दिया हो, ताकि अगर कोई उसको लाइक कांटेक्ट करना चाहे सो वो कर सके, ठीक है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर ये तमाम होने चाहिए या इनमें से कोई एक भी हो तो वो नहीं चलेगा? नहीं, ये तमाम होने चाहिए, ये मिनिमल कंटेंट है, इसमें फिर और एडिशन भी हो सकती है, लेकिन ये दिस इज द मिनिमल कंटेंट। ओके। जी जी। अच्छा, सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होंगे? सो रिसर्च ग्रुप्स जो हैं वो लाइक डेटा कहाँ से आएगा? सो रिसर्च ग्रुप्स जो हैं वो डेटाबेसेस में डेटा डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं। लाइक आप लोग हैं, आप रिसर्च कर लें, सीक्वेंस आपके पास आ गए हैं, आपने PCR लगा लिया, सीक्वेंसिंग कर ली, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू सबमिट इट टू सम सीक्वेंस डेटाबेस। सो रिसर्च ग्रुप्स जो हैं वो डायरेक्ट सबमिट करते होते हैं। लिटरेचर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो है, लाइक मैंने कोई पेपर पब्लिश किया और उसमें सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है, तो वो सीक्वेंस खुद ही सबमिट हो जाता है सीक्वेंस डेटाबेसेस में, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग इंस्टीट्यूट, जो जीनोम सीक्वेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी सबमिट कर रहे होते हैं सीक्वेंस डेटा। पेटेंट से भी लाइक सीक्वेंस डेटाबेसेस में सबमिट किए जाते हैं, डेटा सबमिट किया जाता है। ओके, एंड द पर्पस ऑफ डेटाबेस इज नॉट मेयरली टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा बट to allow intelligent data retrieval. This point is too much important. ये databases का purpose ये नहीं है कि हम that is that service collection and आपको कोई organization उसमें नजर आए, लेकिन जो डेटा रिट्रीव करना चाह रहा है, लाइक कोई सीक्वेंस निकालना चाह रहा है, तो वो इजीली निकाल भी सके, इजीली उसको लाइक डिटेक्ट भी कर सके, उसको आइडेंटिफाई भी कर सके और रिट्रीव कर सके वहां से डेटा। लाइक अगर डेटाबेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि वहां से डेटा लाइक कॉपी करना मुश्किल हो, so that is not an intelligent way to have to retrieve the sequence. Data retrieval easy हो, लाइक कोई भी साइंटिस्ट काम करना चाह रहा है तो वो सीक्वेंस वहां से ले सके। क्वेरी, अब एक यहाँ पे डेफिनेशन को समझ लें, क्वेरी क्या है। सो ये हम बार बार यूज करेंगे। सो अ क्वेरी इज अ मेथड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। अब क्वेरी क्या है कि इज अ मेथड किस तरह के, हाउ टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। सो ये क्वेरी जो है दैट इज स्पेसिफिक फॉर ईच डेटाबेस। सो ये this could be easy to go, easy to understand and easy to retrieve data from the database. And the organization of each record into predefined fields allow us to use queries on the fields. So अब हमारे पास जो records हैं या entries हैं उसके अंदर predefined fields हैं। So वो predefined fields जो हैं वो they give us the way that queries will work on the field. अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो पिछले एग्जांपल में दिया कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको दूं लाइक क्वेरी में सर्च करूँ कि कोई भी प्रोटीन जो 374 बेस पेयर लेंथी हो, तो इस डेटाबेस को इतना इजी होना चाहिए कि वो सीधा सीधा इस पे चला जाए, 374 पे चला जाए, ठीक है। सो लाइक इसके लेंथ पे इस फील्ड पे वो सर्च कर सके, ठीक है। अगर मैं उसका नाम दे दूं तो नाम में वो सर्च कर सके, अगर मैं सीक्वेंस दे दूं तो वो सीक्वेंस में सर्च कर सके, अगर मैं ये कहूं कि एंजाइम है तो वो यस वाले सहारे उठा सके, ठीक है। सो लाइक it could search the organization of each record into predefined fields, allows us to use queries on the fields, ताकि हम उसको लाइक इस तरह हो कि fields में डिवाइड हो ताकि fields पे भी query लगाई जा सके, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड नेक्स्ट इज परफेक्ट डेटाबेस कौन सा होगा? अ परफेक्ट डेटाबेस इज कॉम्प्रिहेंसिव, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा बट इजी टू सर्च, ठीक है। एनोटेटेड बट नॉट टू मच। एनोटेटेड होगा लाइक हमने लिखा होगा कि ये 1 नंबर सीक्वेंस से लेकर 258 तक है, और 1 नंबर सीक्वेंस जो है वो, जी somebody chat and ओके क्लास का टाइम हो गया, ओके ठीक है। ओके सो
इस स्लाइड को खत्म करते हैं फिर खत्म। ओके, अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। सो लाइक बहुत ज्यादा एनोटेशन ना हो, एनोटेशन बहुत ज्यादा होगी, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है तो आप डेटाबेस को चौक कर सकते हैं। सो don't make it too much annotated, like it will make the database heavy to use, and that will not be an intelligent way to add information. So a simple easy to understand structure, उसका structure जो है database का वो simple हो और easy to understand हो, like user friendly हो, cross referenced हो, ऑथर ने नाम दिए हो, मिनिमम रिडंडेंसी हो, लाइक एक सीक्वेंस है वो मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ, कोई मेरा दोस्त है उसको भी वही सीक्वेंस मिला है, वो किसी और जगह से सबमिट कर रहा है, कोई तीसरा बंदा है वो कहीं और से, और 4-5 सीक्वेंसेस हैं, चारों पांचों सीक्वेंसेस सेम है। ठीक है, सो ये रिडंडेंसी है, बजाय इसके कि वो 4-5 सीक्वेंसेस हो या 10-15 हो, उसको डिलीट किया जाए, सिर्फ एक सीक्वेंस उसका रिप्रेजेंटेटिव सीक्वेंस रखा जाए। ठीक है, सो रिडंडेंसी मिनिमम हो, मींस के रेपिटेशन मिनिमम हो, easy retrieval of data ho, like the data could be retrieved easy. So this could be the 6 points, they are the properties of a perfect database. लेकिन एक्चुअल में होता इस तरह नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रॉब्लम, द डेटाबेस गॉट प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स कौन से होंगे? डेटाबेस दैट स्ट्राइव टू encyclopedic completeness are now so huge as to be close to unmanageable. So जो लोग लाइक जो डेटाबेसेस जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, लाइक दे वांट के लाइक दैट इज परफेक्ट टू बी लाइक एनसाइक्लोपीडिया, सो वो इतना हैवी हो जाता है डेटाबेस कि वो दैट इज क्लोज टू अनमैनेजेबल, दैट कुड नॉट बी मैनेजेबल नाउ। रिडंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, दिस इज द सेकंड पॉइंट कि रिडंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, नथिंग एवर गोज आउट, लाइक होना तो ये चाहिए कि रिडंडेंट सीक्वेंसेस हो तो जो पुराना सीक्वेंस है वो निकल जाए, लाइक ये इस तरह हो लाइक मेरे पास एक सीक्वेंस है, मैं ऐड कर देता हूँ और मुझे पता चलता है कि लाइक एक ही जगह टी आना था, और पूरा सीक्वेंस में वही पुराना वाले भी रह जाए और न्यू में वो मैं टी को करेक्ट करके न्यू वाला भी दे दूं। सो डेटाबेस के अंदर वो पुराना भी रह गया, न्यू भी रह गया, फिर मैं जब सीक्वेंसिंग करूंगा तो थोड़ा सा सीक्वेंस उसमें मैंने प्राइमर दूर वाला यूज कर लिया है, तो उसके साथ थोड़ा सा सीक्वेंस और ऐड हो गया है, तो वो तीसरा सीक्वेंस में मैं ऐड कर देता हूँ। सो नथिंग गोज आउट, सारा कुछ डेटाबेस में ऐड होता जा रहा है। अब 3 सीक्वेंसेस मेरे हो गए, एक ही सीक्वेंस होना चाहिए था। ठीक है, सो वो डेटाबेस रिडंडेंट होता जा रहा है, एंड दैट विल फेस प्रॉब्लम, दैट उस डेटाबेस को फिर प्रॉब्लम्स फेस होने और वो बंद हो जाएगा लाइक एक वक्त के बाद, क्योंकि दैट इज टू हैवी टू बी मैनेजेबल। एंड इनएडुकेट सीक्वेंसेस उसमें हो, लाइक अगर कुछ ये थर्ड प्रॉब्लम है, लाइक प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम, वन ऑफ द 3 प्रॉब्लम्स में एक ये भी है कि इनएडिक्वेट सीक्वेंसेस हो। इनएडिक्वेट सीक्वेंसेस से क्या मतलब है? सीक्वेंसेस बहुत पुराने हो, अब न्यू सीक्वेंसेस आ चुके हैं, और एंड दैट इज लाइक द सेम सीक्वेंस, और पार्शियली एनोटेटेड सीक्वेंस हो, वो सीक्वेंसेस सही प्रॉपर एनोटेट ना हुए हो, इनकंसिस्टेंट और आउटडेटेड एनोटेशंस हो, लाइक एक इंफॉर्मेशन है वो पहले हम ये समझ रहे थे कि ये मोटिव इस फंक्शन के लिए है, लेकिन अब वो मॉडिफाई हो गया है, उस का फंक्शन नॉन हो गया है, तो हम परफेक्टली कह सकते हैं कि इसका अब ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। सो वो पुरानी जो एनोटेशन है वो आउटडेटेड हो गई है। So we need to correct that as well. So error sequences हो उसमें, low quality sequences हो, contaminations हो, like कोई sequence है उसमें contamination हो, कोई और sequence आ गया हो, हम हम कह रहे हैं कि ये इंसुलिन है और वो कोई किसी और चीज का sequence हो, anonymous sequences हो, authors का पता ही ना हो कि किसने submit किया हुआ है। So these are the problems with the databases actually. ठीक है, समझ आ रही है? Yes. Previous to this, we have talked about there are a specific identification number of certain sequences of these sequences, and that identification number is known as accession number. And that accession is actually there are if somebody want to submit the sequence in the data bank, like it is like जी सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। अभी ठीक है? हाँ सर, बस लाउड बोल रहे हैं आप। ओके, अभी ठीक है? असल में मैं ये कह रहा हूँ कि इतना अगर लाउड हो जाऊं फिर वो कुछ लोगों को बहुत श्रिल लगे आवाज या बहुत करीब से आए तो फिर वो उनके लिए थोड़ा सा इशू नहीं होगा। सर, अब क्लियर आ रही है। अब ठीक है, चले। थैंक यू सर। ओके, नो वरीज। ओके, मैं ये कह रहा था
Okay, for instance, you are working in a research lab. You consider yourself in a lab, and you got an opportunity to amplify sequence through PCR. Then you like sequence that with some sequence or some sequencing facility do it for you. You got the sequence. Then after getting the sequence, that is you amplify like you took the sample from like Afghani population, like, and you want, yeah, or like Pakistani population, and you sequence that. Now you want, like, you have some information that is different from other sequences, like you have the sequence and you want to like share with people. So one of the opportunity you have is to and the first and the prior most thing you need to do is to submit the sequence to the data bank. So what you will do, you will take the sequence, you will analyze first, you will confirm the sequence, like you have to annotate the sequence. Like annotation means if there is a sequence and like you have a sequence and the sequence is like wait for a while, okay, and the sequence is like A C T G T T G T A T G G G, like C C A T. So like this is a sequence. So now this sequence is a sequence. It doesn't show anything unless it has been annotated. And like this is like TG and TGA, and this is GG TG TTT. Like this is a sequence. It doesn't say anything to us unless we annotate it. Like I analyze the sequence, and after analysis, I got to know that this ATG is the start codon. And okay, so this ATG is the start codon. Sorry, what happened? Okay, this ATG is the start codon, and this TGA is the stop codon. So I will say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and from ninth nucleotide, the ATG is the start codon, and this one TGA is the stop codon, and this is the untranslated region, and this is the 5' untranslated region, and this is the whole, this is the exon 1, and so on. So this is what annotation is. So we need to annotate a sequence, and now we need to submit the sequence. Now billions of scientists like us, they will submit the sequences, and from the end of the from the gene bank end or from the data bank end, there are certain people, there are some certain specialists that will curate, that will see the sequence, that will analyze the sequence on their end, and will take some sequence as reference sequences. Reference sequence is a sequence like, and just like reference books, there are certain books, there are billions and millions of books on certain topics, but few books are like reference books on that specific topic, and that reference book people use as a standard on that topic. Similarly, reference sequences are the standard ones. They are considered standard sequences for certain proteins or certain amino acid nucleotide sequences. So and for certain proteins, and so like so there is some convention for reference sequences. So reference sequences are done by they are identified, and they are they are like designated by the data bank. So there are certain convention for the reference sequence. When you see like the accession number like this, you will know that this is a reference sequence, and this is not a common sequence actually. So when there is NC and the rest of the digits are there, so NC means, so C means complete genomic molecule.
and that will correspond to C. So when you see like NC and followed by the underscore, and then there are certain digits there after that, and that will mean that will be a complete genomic molecule. And if there is NG and then underscore and then the digits, so that will mean the G will mean the genomic region. And when there is NM, so M means that will be messenger RNA, and NP that will mean protein. So you will see the N is common. NR, R means that will be RNA, and NT that will mean computed genomic contig, means a small piece of like sequence. And XM, the X will mean this will mean original sequence, and X will mean computed, means that is not original sequence that has been computed through like certain tools. So XM means computed messenger RNA. XP means computed protein, and that's it. And after that, okay, so there are certain databases where we can submit our sequences. The first of the database is EBI. EBI is European bioinformatics, like European bioinformatics institute. Like this will be the yeah, sorry, this is EMBL Institute for like we will be discussing that. Like I forgot actually the actual abbreviation for like actual name for this abbreviation. Let me check the. Okay, and after that, that is GenBank. GenBank corresponds to the NCBI, and after that there is a DDBGA. DDBGA is that is a data DNA data bank of Japan. And these all these three databases, they are the three main databases. Actually now people use the GenBank. People don't use EBI, DDBJ more. People now use GenBank. Therefore, they are not in like they are not no more famous now. The GenBank is the most famous and appropriate, and people do use GenBank now. So they serve as archives containing all sequences. They are single genes, ESTs, complete genomic, etc., genomes, etc., derived from genome projects. So people in the genome projects, they submit like the sequences to these data banks. Sequencing centers, they submit sequences to the data bank, to these data banks. Individual scientists like people like us, like they submit sequences to these data banks. Literature, from the literature, these data banks like they extract sequences and they submit those. Patent offices submit sequences. Non-confidential data exchange daily. So you can see this will be non-confidential data, because the data you submit to these data banks, they will be shared with the people. That should not be, and that must not be confidential anymore. And the data triples approximately every 12 months. Like every 1 year, the data in these data banks, they triple to their size. So you can imagine how much the sequences they come into field, into these data banks. One of the questions somebody asked, like what is a contig? Contig is a small sequence, like that is a small sequence of from the whole genome. So people actually they assemble contigs to get the whole sequence actually. And these are actually the data bank, DNA data bank of Japan, DDBJ, and the site of that is there, the European Molecular Biology Laboratory. EMBL, this EMBL, this is the EBI that relates to EMBL, and NCBI. It has the GenBank, the main center for that is NCBI, National Center for Biotechnology Information, USA.
जी, any question, any point, anything you want to ask? जी. सर आपने नॉन कॉन्फिडेंशियल डाटा के बारे में क्या बताया? अच्छा, ये जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा आपने नहीं जब उसमें सबमिट करना, ठीक है, बिकॉज लाइक इसमें ये है कि द डेटा यू सबमिट टू दीज डेटा बैंक्स विल बी नॉन कॉन्फिडेंशियल। ये नहीं है कि कल को हम फिर क्लेम करें कि मेरा डेटा तो कॉन्फिडेंशियल था तो ये क्यों पब्लिक हुआ है, ठीक है। सो आवर डेटा नीड्स टू बी नॉन कॉन्फिडेंशियल, लाइक इस तरह नहीं है कि वो that is confidential and we have to protect the data. So अगर कोई हमारे पास हमें कोई फॉर इंस्टेंस कोई सीक्वेंस जमा करता है हमें देता है तो हम डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकते unless we declare that that is non confidential. ठीक हो गया? ओके सर। सर पेटेंट ऑफिसेज का क्या मतलब है? अच्छा, पेटेंट ऑफिस का मतलब ये है कि लाइक इंडिविजुअल साइंटिस्ट हैं वो डेटा सबमिट कर सकते हैं, पेटेंट ऑफिस कर सकते हैं। पेटेंट्स का तो पता है ना, व्हाट इज पेटेंट एक्चुअली? सो पेटेंट इस तरह है लाइक कोई नई चीज हो और patents are actually intellectual property, just like physical property. We have intellectual property like book को patent करना, like मैं उस चाह रहा हूँ कि मैं कोई like कोई new चीज discover किया है मैंने, I discovered a new thing and I want to patent that in order to protect my rights, that thing belongs to me. So in order to protect that, I need to have a patent. Like I made a glass and that glass is made up of like something new. So something new metal and I will go to patent that. ठीक है? सर हम पेटेंट को कॉपीराइट्स कहते हैं किसी भी पेटेंट का जो exactly, and that is intellectual intellectual property actually. तो intellectual property में copyrights भी आ जाते हैं, patents भी आ जाते हैं. These are the different types of the like intellectual properties. So copyrights हैं, book को जब publish करें तो book का ISBN number मिल जाता है उसको proper, वो इस तरह articles जो हैं DOI number मिल जाते हैं, वो once they are published so that is your property. पेटेंट्स इस तरह चीज है योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लाइक मेरा एक आइडिया है और मैं ये कहता हूँ कि लाइक कोई न्यू आइडिया हो और वो लाइक मैं कोई स्टंट जो हर्ट में स्टंट लगता है और मैं उसमें कोई इनोवेशन कर लेता हूँ, ठीक है, एंड दैट इनोवेशन इज न्यू फॉर द वर्ल्ड, सो I need to protect the rights that I have like discovered that thing, so I need to have my right on that thing first, ठीक है। so मैं उस rights को protect करने के लिए वो like patent मैं करूँगा, मैं patent करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है। So ये like people do patent, so ये patent offices जो हैं ये submit करते हैं डेटा, उसको इन जो सीक्वेंस का डेटा है वो डेटा बैंक्स को सबमिट करते हैं, ठीक हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट इज ओके, एंड सो अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो? इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। ओके, and so next is these three data banks, GenBank, AMBEL, DDBJ, and the sites are given there for you. And these the data banks, they have heterogeneous sequences, like heterogeneous in length, genomes. They have different genomes, they have different variants, they have different fragments, like the sequences are of different sizes and different properties, they contain different properties. Minimum sequence size is 10 base pairs. From below 10 base pairs you cannot submit the sequence to these data banks. And
after that, you will see certain errors. The sequences will have errors in annotations, in sequences, in annotation, in CDS attribution. So don't rely on these sequences fully. Like you have to take the reference sequences first, so you can rely on the reference sequences. The rest of the sequences people do submit on their own. They have like they do mistakes in submitting, and that people don't bother to change that unless they do it for publications. So and no consistency in annotations. Most annotations are done by submitters, so heterogeneity of the quality and the completion and updating of the information is required. So and ओके, इसकी बात की समझ आ गई कि नहीं? सर लास्ट पॉइंट बराबर था। अच्छा, कोई इसको एक्सप्लेन कर देगा पहले? इस स्लाइड को कोई भी एक्सप्लेन कर दे। फाइका इज देयर? फाइका? यस सर। जी, आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज इसको, इस स्लाइड को, जितनी भी समझ आई आपको। सर सबसे पहले तो यहाँ पे जो हेट्रोजेनियस में उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो सीक्वेंस लेंथ होगी, जीनोम्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे, यानी कि उसमें वेरिएशंस आएंगी। स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते कि हर जीनोम लेंथ इतनी ही होगी, वो वेरी करेंगे आपस में। और सेकेंडली जो है ये मिनिमम जो होगी वो 10 बेस पेयर्स की होगी, यानी कि 10 बेस पेयर्स हमारी मिनिमम लेंथ है। हर सीक्वेंस एटलीस्ट 10 बेस पेयर्स का तो होगा, इससे ज्यादा का हो सकता है, कम का नहीं होगा। फिर उसके बाद था कि ये फुल ऑफ एरर्स है, यानी कि हम इस पर टोटली रिले नहीं कर सकते, इसके अंदर एरर्स आ सकते हैं। और सर लास्ट वाला जो था उसके अंदर था कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आती। लाइक उसके अंदर जो हम ये नहीं कह सकते कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक दफा अगर आ गई है तो वो कंफर्म यही है, उसकी अपग्रेडेशन होती रहती है, उसके अंदर अपडेटिंग वगैरह चलती रहती है। These billions of A's, G's, T's and C's would be useless without the annotation in each sequence. कोई भी सीक्वेंस होगा, ये A, T, G, C जितना भी सीक्वेंस होगा तो वो यूजलेस है अगर हम उसको एनोटेट ना करें, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना कि ये किस चीज का सीक्वेंस। आपकी आवाज चली जाती है। अभी ठीक है, अभी भी चली गई है? सर क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ। So annotation is important. So वेट असल में मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वहां से कॉल आ जाती है उस पर। चलें अब ठीक है। ओके, सो बिलियंस ऑफ जो एज, टीज और सीज हैं एक सीक्वेंस में, सो वो जो है वो यूजलेस होंगे, उससे हमें पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का सीक्वेंस है। अगर हम ये ना बताएं कि ये इंसुलिन का सीक्वेंस है और इस इंसुलिन के सीक्वेंस में यहाँ से यहाँ तक जो है ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये स्टार्ट कोडॉन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एंड हो रहा है, यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस जो है ये जीसी रिच है, ये रीजन जो है ये पार्ट करस्पॉन्ड कर रहा है, ये जो है ये लाइक बाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा, ये अमीनो एसिड बनाएंगे, एंड इस तरह के लाइक इंफॉर्मेशन जो है वो हमने देनी है। अगर हम इस तरह इंफॉर्मेशन दे दें तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द सीक्वेंस एक्चुअली मीन्स एक्चुअली। ठीक है, सो द एनोटेशन इज इम्पोर्टेंट, सो अनएक्सप्लोर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड। और इस असल में जो डेटा बैंक्स हैं वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लाइक we don't expect like the errors like these, but they do exist in the data banks. और उसमें like क्या है, like ये two examples हैं, accession Z71230 and accession NC_001610। so ये दो accessions जो हैं ये इन्होंने एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है source, so 1 to 124, it means that sequence is from nucleotide number 1 up till 124 nucleotides, and that is the reference is given organelle plastid है और chloroplast है। एक्चुअली ऑर्गेनिज्म जो है वो निकोशियाना टेबेकम है, तो इस प्लांट का प्लास्टिड है निकोशियाना टेबेकम का, और इसका क्लोरोप्लास्ट है, और आइसोलेट का नाम क्या दिया हुआ है, क्यूबन Cahibo cigar gift from President Fidel Castro.
So this is like nonsense, like from where this came actually. So इस तरह की गलतियां जो हैं या वो people don't expect like it should that it has been written like this here. And the second example is the sequence is from 1 to 17084, and that is chromosome complete mitochondrial genome है ये, and that is the organelle is mitochondrion, and organism is like this, and development stage is adult, and isolate fresh road killed individual and tissue type liver. So this is fresh road killed individual. What does it mean now? So this is like nonsense in this case. Actually it looks like it is there is some blunder in these sequences actually been made. And सर there is सर आपने एनोटेशन का बताया अभी, तो एनोटेशंस में सर ये चीज क्लियर करवा दें कि हम जो डाटा बैंक है उसके अंदर हमने सीक्वेंस एंटर कर दी न्यूक्लियोटाइड्स की जो भी हमने ऑब्जर्व की है, तो एनोटेशन वर्ड जो डाटा बैंक है वो करके देता है हमें, वो बताता है कि यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन रीजन है और डाइसल्फाइड बोर्ड है, तो वो सारा डाटा ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस इनसे पता चल जाता है। जी शफीक, इसी तरह है कि जब हम सीक्वेंस सबमिट करते हैं, यू आर राइट इन दिस वे, लाइक इट्स गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन एवरीबॉडी माइंड, अनलेस अगर हम कोई सीक्वेंस लें और उसको सबमिट करें, इस प्रोसेस से जब तक हम गुजरे नहीं होंगे हमारे जहन में ये क्वेश्चन होता है। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट एज वेल हियर ऑन दिस स्टेज। होता ये है कि व्हेन वी हैव अ सीक्वेंस, we know which is the starting codon, which is the stop codon, and which is actually the reading frame. Like मैं अगर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दूं, like ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं अब यहाँ पे इस वजह से करना चाह रहा हूँ कि लेट्स इस like यहाँ पे एक सीक्वेंस है A T G and there is C A T G G T like this, and like this is 3, and this is like this, okay, if I have this sequence, अगर ये sequence मेरे पास है और it is like continuous like here, अगर ये सीक्वेंस मेरे पास है, मैं इसमें इसमें यहाँ पे डॉट्स पे लगाता हूँ ताकि वो हम इस तरह शो कर सकें कि अच्छा ये सीक्वेंस अगर मेरे पास है एंड आई नीड टू एनोटेट दैट, मैं ये जब सबमिट करूंगा तो वो क्या करेगा कि ATG को स्टार्ट को डाल लेगा, इस ATG को स्टार्ट को डाल लेगा। इसके बाद ये CAT है, तो CAT कोई और अमीनो एसिड है, GGT फिर कोई और अमीनो एसिड बन जाएगा और ये सारा रीडिंग फ्रेम खराब हो जाना है। इसके जब प्रोटीन बनेंगे अमीनो एसिड के तो वो डिफरेंट होंगे, और अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ, लाइक इसको मैं कहता हूँ कि ATG ये वाला कर लें, तो ये इसके बाद जो अमीनो एसिड बन रहे हैं ना जिस सीक्वेंस से, तो वो सारे जो हैं वो प्रॉपर लाइक जिस प्रोटीन के हैं उसके पेप्टाइड बनेंगे, उसके प्रोटीन्स बनेंगे। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने ये पूरा सीक्वेंस सबमिट करना है और कहना है कि ये फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड जो है दैट इज द स्टार्ट कोडॉन, दैट इज द A फ्रॉम द ATG। तो ये जो ATG है दिस इज द स्टार्ट कोडॉन, तो वो इसको अनट्रांसलेटेड रीजन कर देगा, ठीक है। और इसको और इसको हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कोडॉन कंसीडर कर देंगे। इसको जब स्टार्ट कोडॉन कंसीडर करेंगे ये इस तरह रीड करेगा और इस TGA को स्टॉप कोडॉन कंसीडर कर देगा, क्योंकि ये इसी रीडिंग फ्रेम में है। अगर ये वाला हम करेंगे तो ये वाला TGA फिर रीडिंग फ्रेम में नहीं आएगा, फिर दिस शुड नॉट बी द स्टॉप कोडॉन देन, ठीक है। सो ये हमने खुद उसको बताना है कि दिस कुड बी द स्टॉप कोडॉन, दिस कुड बी द स्टार्ट कोडॉन। आप देखेंगे अगर जैसे ही लाइक आप उसको बताते हैं कि ये स्टार्ट कोडॉन है, तो वो आपको प्रोटीन ट्रांसलेट करके दे देगा,
वो प्रोटीन आपने वहां पे उस वहीं पे कमांड होगी, वहां पे ब्लास्ट करके देखेंगे तो वहां पे आ जाएगा कि दिस इज दिस प्रोटीन। और अगर आप यहाँ से करते हैं तो हो सकता है दरमियान में ये ट्रंकेट हो जाए, तो उस प्रोटीन में प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड दिस इज एक्चुअली व्हेन यू सबमिट दैट यू विल सी हाउ यू कुड डू दैट व्हाइल सबमिटिंग दिस थिंग। सर ये इसका मतलब जब हमने सीक्वेंस देना, हमने रेफरेंस पॉइंट दे देने कि ये हमारा स्टार्ट है और ये हमारा एंड है, तो वो उसी हिसाब से बाकी एग्जैक्टली सबको कर देगा। इसी तरह हमने खुद एनोटेट करना है। ठीक है। ठीक हो गया अच्छा, सर। फिर वो जो डेटा बैंक है उसने क्या करना है, उसने जो प्रोटीन वहां से बन रही है ना, उसको वो अलहदा एक्सेशन नंबर दे देगा। लाइक कोई और बंदा है और कोई एक बंदा है, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं हूँ और आपने सीक्वेंस सबमिट किया हुआ है, तो मेरे पास एक और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और मैं उसको ब्लास्ट करूं तो वो आपने जो सीक्वेंस सबमिट किया उसके साथ आइडेंटिटीज 99% आ रही है, तो आपका सीक्वेंस मुझे उठा के दिखा दे कि दिस वन इज द सीक्वेंस विद व्हिच योर सीक्वेंस हैज मोर आइडेंटिटीज। ठीक है। अगर मैं प्रोटीन सीक्वेंस मेरे पास है और मैं प्रोटीन सीक्वेंस को सर्च करूं तो आपके सीक्वेंस से इन्होंने प्रोटीन सीक्वेंस को रिड्यूस किया हुआ हो, बनाया हुआ हो प्रोटीन सीक्वेंस को, तो वो प्रोटीन सीक्वेंस वहां से निकल आए। ठीक है। सो उसके लिए फिर यह है कि आपने पहले से सारा कुछ एनोटेट किया हुआ हो। ठीक है। सो बेहतर यही होता है कि जब सबमिट करने से पहले बंदा खुद एनालाइज कर ले, उस सीक्वेंस को प्रॉपर एनालाइज कर ले, फिर उसको सबमिट करने से करे तो वहां पे एनोटेशन प्रॉपर दे दे उसकी। ठीक हो गया? ये सर क्लियर हो। ओके, दैट्स गुड। क्लास कोई क्वेश्चन? समझ आ रही पूरी क्लास को? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये सेशन नंबर से sir. हमें सेशन नंबर से किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है? जैसे आपने बताया था कि कंप्लीट C फॉर कंप्लीट है, जैसे ये सेकंड में लिखा भी हुआ है कि कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, लेकिन जो फर्स्ट एक सेशन नंबर है सर उसमें Z71230 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टैक्सोन के लिए है? ओके ओके फायजा, एक्चुअली होता ये है कि जब हम सीक्वेंस सबमिट करते हैं ना तो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है। वो यूनिक आइडेंटिटी दिस कुड बी दैट दिस वन, ये यूनिक आइडेंटिटी है, ये किसी और सीक्वेंस की नहीं होगी। ठीक हो गया? अच्छा, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि इस तरह की सीक्वेंसेस में गलतियां होती हैं। ठीक है। कुछ सीक्वेंसेस जो हैं वो एज अ रेफरेंस सीक्वेंस यूज होते हैं, जो जेन बैंक है, डेटा बैंक है, डेटा बैंक ने उन सीक्वेंसेस को एज अ रेफरेंस सीक्वेंस कंसिडर करना है। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट देम, लाइक कुछ सीक्वेंसेस जो हैं वो उनके एक्सेशन नंबर इस तरतीब से होंगे, लाइक दिस विल बी इन दिस ऑर्डर। सो एनसी जहां भी आएगा दैट विल मीन दैट इज अ रेफरेंस सीक्वेंस। ठीक है। सो दैट कैन बी रिलाइड अपॉन, दैट दे आर ऑथेंटिक एंड सो एंड जो दूसरे सीक्वेंसेस हैं like the other sequences, they have like in this order, that will be submitted by the submitters and they are in their primitive stage, like उसमें हो सकता है changes हो बाद में। ठीक है। सो दी एनसी और ये जो अंडरस्कोर जहां पे आएगा जिस सीक्वेंस में, so that will mean that is reference sequence. ठीक है। So those sir. things that we have talked about in the previous slide, those applied only to the reference sequences. ठीक है। सर मतलब हमने अंडरस्कोर वालों से उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये नहीं रेफरेंस नहीं, है? हाँ एग्जैक्टली, अंडरस्कोर अगर होगा तो इसका मतलब है कि वो रेफरेंस सीक्वेंस है। ठीक है। सो ये इस तरह होता है, लाइक फायदा यू सब इफ यू सबमिट अ सीक्वेंस टू द जेन बैंक, वहां पे आपको लाइक आपके सीक्वेंस के लिए इस तरह की आईडी मिल जाएगी। बाद में जो जेन बैंक है या डेटा बैंक्स हैं जितने भी, वो सारे सीक्वेंसेस देखते होते हैं, वो एनालाइज करते होते हैं, मे बी दे कंसिडर यूर सीक्वेंस एज अ रेफरेंस सीक्वेंस, तो वो पुराना वाला accession number भी होगा और एक new accession number will be generated and that will be your sequence accession number. So now you will have two accession number for the same sequence. One is the reference sequence and one is your own accession number, the previous accession number. ठीक है। तो ये भी possibilities हैं। ठीक है। ओके सर। Am I clear? Should we go further?
यस सर। कोई क्वेश्चन है? कोई अगर किसी का क्वेश्चन है बताएं, या और am I clear? Should we go further? Yes, sir. यस सर। Okay, so this is another example. This is a screenshot of the sequence. ये देखें आप, this is the NCBI site and you will see like this, and search में इन्होंने nucleotide किया है, and you can search for in the nucleotide, and display जो ये, and you can see the display is the GenBank. You can see the GenBank order and the how the GenBank accession looks like, and like this is the beginning. Okay, so now you can see you will be like seeing the accession number, and like this information you will see, and the year of submission, and this is PRI, and this sort of information you will see on the GenBank, like on the data bank. And you can see accession, version, keyword, source, organism, reference, authors. So what are they actually? And features actually, location, qualifiers, and this sort of information you will see on this site. So what are they actually? If you can see the one and the accession number, then and this Z92910, after that is written is Homo sapien and HFE and so on. So first is locus. So you can see 1, 2, 3, 4, 5. In the red one, they are explained here on these slides actually. And 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, and so on. And this is the year. So first of all, the one is locus actually. So locus is the field that consists of 5 different subfields. So one subfield, second, third, fourth, 5. So 5 subfields are there in the locus. And the first one is this one, HSHFE. So this is the locus name is the tag for grouping similar sequences. So this is like similar sequences ko tag karna. The first 2 and 3 letters usually designate, or 3 letters usually designate the organism. So Homo sapien is the organism. HS is from the Homo sapien. So HS, and in this case HS is the Homo sapien. The last several characters are associated with another group of designation such as gene product. So जो ये जो है ये gene product को recognize करेगा HFE in this case. So and currently, the only requirement for assigning a locus name to the record is it's unique, and that it is unique. So locus का नाम जब दिया जाएगा, so एक ही requirement है कि it must be unique from others, from other groups. And the second one is like here is the sequence length, and the total number of nucleotide base pairs or amino acid in the sequence record is the sequence length actually. And the third one is the molecule type. So this is the DNA type of molecule that was sequenced, and all sequence data in an entry must be of the same type. So like here is the DNA. So in some cases that will be RNA, in some cases that will be cDNA, and so on. And so in some cases that will be proteins, amino acids. So GenBank division यहाँ पे आप अगर देखें, so यहाँ पे PRI लिखा हुआ है. So PRI means there are different GenBank division. In this example, PRI stands for primate sequences. So that it could be human, some that the human, and some other divisions include rodent. So there will be written ROD. So rodent sequences. Some will be written MAM. So mammalian sequences. Some will be written as PLN, and that will be plant, fungal, algal sequences, and some will be BCT, and that will be corresponding to the bacterial sequences. And next is the modification date. So modification date of most recent modification made to the record. The date of the first, like ये जो modified date है, इसके जो पहले version है, वो date यहाँ पे available नहीं होंगे. If you need that information, so that can be obtained by contacting the NCBI actually. यहाँ तक बात clear है? यानी सर डेट अपडेट होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है. हाँ बिल्कुल.
बिल्कुल डेट मॉडिफाई होती रहती है, लेकिन इफ यू वांट द प्रीवियस डेट कि ये पहली दफ़ा कब सबमिट किया गया था, असल में इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसने पहले सबमिट किया था। कोई क्लेम कर रहा है कि मैंने पहले किया हुआ था और यहाँ पे न्यू डेट है, तो अगर आपको पुरानी डेट चाहिए सो यू कैन कंटेक्ट द NCBI, दे विल प्रोवाइड यू द फर्स्ट डेट, द प्रीवियस डेट्स। ठीक हो गया, समझ आ गई है? यस सर। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, क्या क्लियर है एवरीथिंग? क्लियर है? Yes, sir. Okay, and next is definition. So यहाँ पे आपको देखिए 2 नंबर पॉइंट पे definition का वो है। तो brief description of the sequence, this is the definition. In the definition tag there is a brief description of the sequence, and the description may include source organism, name, gene or protein name, designation as untranscribed or untranslated sequence, a promoter region. So इस तरह के designation जो है वो हमने देने हैं. For sequences containing a coding sequence, the definition field may also contain completeness qualifiers such as complete CDS or exon 1 etc. So अगर complete coding sequence है तो वहाँ पे हमने coding sequence लिखना है. अगर exon है तो वहाँ पे हमने exon लिखना है कि exon कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है, like it's complete or not complete. So definition में हमने that's covered, like वहाँ पे brief description हमने देनी है. एंड एक्सेशन, इसके बाद एक्सेशन का नंबर आता है कि एक्सेशन, अब इसको समझ लें प्लीज, ये जो जहाँ से स्टार्ट किया था एक्चुअली, तो एक्सेशन इज द यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू कंप्लीट सीक्वेंस रिकॉर्ड. सो ये पूरा सीक्वेंस जो रिकॉर्ड है इसको एक एक्सेशन नंबर दिया जाता है. दिस नंबर नेवर चेंजेस इवन इफ द रिकॉर्ड इज मॉडिफाइड. जब इसको मॉडिफाइड भी किया जाता है तो एक्सेशन नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा. एक्सेशन नंबर विल बी द ओल्ड वन. And accession number is a combination of letters and numbers that are usually in the format of one letter followed by 5 digits. So एक letter होगा, one letter followed by 5 digits, 1 2 3 4 5. So कोई भी 5 digits होंगे. So one letter followed by 5 letter. This was the old convention. Or 2 letters followed by 6 letters. So 2 letters हैं and followed by 6 digits है. This is now the new and the recent format now. तो पुराने सीक्वेंसेस इस तरह दिए जाते थे और अब जो है अब सीक्वेंसेस इस तरह दिए जाते हैं कि लाइक 2 लेटर्स होते हैं और 6 डिजिट्स होते हैं. Am I clear? Yes. So version is another thing. Version यहाँ पे आपने यहाँ पे देखा होगा, वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, यही सेम एक्सेशन नंबर है और .1 के साथ. ठीक है. सो .1 मीन कि ये एक दफा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये मॉडिफाई नहीं हुआ. अगर ये 2 हो यहाँ पे तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस में जो नीचे इसके बाद दिया होना है उसमें चेंजेस आए हैं और दिस इज द मॉडिफिकेशन, दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन. अगर 3 है सो दैट कुड बी द नेक्स्ट मॉडिफाइड वर्जन. ठीक है. And a version for number for Z92910.1 for this HFE sequence indicates that the sequence data has not been altered since its original submission. तो पहली दफा जैसे ही सबमिट हुआ है उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं हुए. ठीक हो गया. And GI number जो है also a sequence identifier number. Whenever a sequence is changed, the version number is increased and a new GI gene info identifier है is assigned. If a nucleotide sequence record contains a protein translation of the sequence, the translation will have its own GI number. So ये GI number जो है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा. अगर वर्जन चेंज हो जाए तो लाइक इस यहाँ पे 2 आए तो जीन आइडेंटिफायर नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा. और अगर एक सीक्वेंस है उसका प्रोटीन लाइक ट्रांसलेशन प्रोडक्ट इज देयर, सो दैट ट्रांसलेशन प्रोडक्ट विल आल्सो हैव अ यूनिक प्रोटीन आइडेंटिफायर नंबर, वो चेंज होगा इससे. ठीक है.
And next is keywords. Next are keywords. Keywords are like here in this case hemochromatosis, and that HFE gene. A keyword can be any word or phrase used to describe the sequence. Keywords are not taken from controlled vocabulary. अब यहाँ पे देख लें, ये controlled vocabulary से नहीं लिए जाते, ये इसमें देखा जाता है कि ये थोड़े से different word हो. Like in this case hemochromatosis जो है HAE है, तो that is British spelling rather than American hemochromatosis. So many records have no keywords. A period is placed in this field for records with a keyword. So एक dot लगाया जाता है. अगर हमने keyword नहीं लिखने तो just put a dot here and that will serve your purpose. Like यहाँ पे that doesn't mean the keywords are not applicable. So hemochromatosis क्या है? Can lead to a number of complications, especially in joint and in organs where excess iron leads to be stored, like liver, pancreas, heart. Like आपने देखा होगा thalassemia के patients में when we transfuse like blood, so blood जो है वो utilize हो जाता है, लेकिन जो iron है वो accumulate होता जाता है, तो iron accumulation is a problem in there. So hemochromatosis is also like accumulation of iron in liver, pancreas, and heart. So that is that condition where iron accumulates in the body in different organs. So and next is source. यहाँ पे आप देख नजर आ रहे हैं source का. So source usually contains an abbreviated or common name of source organism. So this is the common name for the organism from which the sequence has been taken. So and organism में हमने क्या करना है, इसका scientific name लिखना है. Homo sapien, the scientific name usually genus and species and phylogenetic lineage. See the NCBI taxonomy homepage and for more information about the classification scheme of these like organism taxonomic lineages. And next is reference. So reference में क्या होगा, citation, like citation of the publications by sequence author. जितने भी publications हैं जो sequence author ने किए हुए हैं, जो sequence submit कर रहा है और इस sequence की information उसमें है, तो लाइक मैं एक सीक्वेंस सबमिट करता हूं और उसको मैंने पब्लिश भी किया हुआ है, तो उस पब्लिकेशन के इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा. लाइक XYZ कोई भी बंदा है उस सीक्वेंस को देखें, तो वो इस सीक्वेंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा है, कोई और एक्सप्लेनेशन इसकी देखना चाह रहा है, तो उसको मैंने पेपर का लिंक भी दिया हो यहाँ पे ताकि वो उस पेपर को देखे. एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सीक्वेंस will have been given like there. So like several references may be included. Okay, so several references may be included in one record. References are automatically stored for the oldest to newest. Cited publications are searchable by author, article or publication title, journal title or med-unique identifier, UID, Medline unique identifier. The UID links the sequence record to the Medline. And next is the feature. The feature is important. यहाँ पे आपको देख नजर आ रहा होगा feature का वर्ड लिखा होगा, मीन्स के इस यहाँ के बाद ये फीचर शुरू हो जाते हैं. दिस वन. सो फीचर्स क्या है, फीचर्स में सोर्स होगा, जीन, एक्सॉन, CDS, इंट्रॉन्स, पॉली ए सिग्नल, ये चीजें दिए होंगे. सो व्हाट आर दे एक्चुअली? सो अ फीचर इज simply an annotation that describe a portion of sequence. ये sequence के portion को describe करेगा. Each features include a location, sequence, location, or interval, or one or several qualifiers. Clicking on the feature name will open the record for sequence interval identified in the feature location. आप यहाँ पे जब जीन को अगर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये ओपन कर देगा. अगर एक्सॉन को क्लिक करेंगे तो एक्सॉन को दिखा देगा. अगर CDS को क्लिक कर देंगे तो ये CDS को दिखा देगा, लाइक वो उसी रीजन को दिखा. इंट्रॉन को क्लिक करेंगे तो दे विल गो टू द इंट्रॉन. पॉली ए सिग्नल को करेंगे तो दे विल गो टू द पॉली ए सिग्नल. ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? यस सर. कोई बात हो, कोई क्वेश्चन, किसी को समझ नहीं आई तो बताएं. अच्छा, कलीमुल्ला है. कलीम, आर यू देयर? यस सर. जी, इस स्लाइड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्या है.
सर इसमें आपने बताया ना कि जो हम डेटाबेस देखते हैं उसके जो फीचर हैं कि हम अगर कोई सर्च करना चाहें जैसे जीन है, उसका एक्सॉन है, सीडीएस है, हम इसको क्लिक करेंगे तो उसके फीचर दिखा देगा। ठीक हो गया। और फीचर्स में क्या क्या चीजें हैं? फीचर्स में जैसे सर सोर्स दिया हुआ है और जीन, सीडीएस, इंट्रॉन, पॉली ए टेल और पॉली ए सिग्नल, सॉरी पॉली ए सिग्नल और इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, सो वो उसी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होगी। सो इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक सीक्वेंस के बारे में मुख्तलिफ चीजें थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रेफरेंसेस के बाद फीचर्स शुरू होते हैं। तो फीचर्स ये फीचर्स होंगे। इसके बाद लाइक हाउ टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन, एक्सॉन, सीडीएस, इसको प्लीज समझ लें। जीन क्या होगा? अ सीक्वेंस पोर्शन दैट delineates द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ जीन। एक जीन का जो स्टार्ट और एंडिंग होगा तो उस सीक्वेंस को हम जीन सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन उसमें एक्सॉन को जीन से हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कि एक्सॉन क्या है? सीक्वेंस सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एक्सॉन। एक्सॉन में कंटेन पोर्शन ऑफ 5 प्राइम 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। सो एक्सॉन में 3 प्राइम 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी हो सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं है कि कोडिंग हो। ठीक है, तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी हो सकते हैं एक्सॉन के अंदर। द नेम ऑफ द जीन टू विच द एक्सॉन बिलोंग्स एंड द एक्सॉन नंबर आर प्रोवाइडेड। सो एक्सॉन के नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सॉन 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, सो एक्सॉन में क्या होगा कि यूटीआर रीजन्स भी होंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी होंगे। अब कोडिंग सीक्वेंस, अब यहाँ पे सीडीएस भी है। कोडिंग सीक्वेंस, सीडीएस इज द कोडिंग सीक्वेंस, sequence of nucleotide that code for amino acid of the protein product. So इसने coding sequence ने क्या करना है? amino acid encode करने हैं. So the CDS begins with the first nucleotide of the start codon and ends with the third nucleotide of the stop codon. So first nucleotide का first codon का starting amino nucleotide और ending amino acid का last nucleotide. So ये जो है कोडिंग सीक्वेंस में होंगे। तो इसका मतलब है कि कोडिंग और एक्सॉन में क्या फर्क होगा? एक्सॉन कंटेन्स यूटीआरस एज वेल, अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी होंगे एक्सॉन के अंदर। सीडीएस में अनट्रांसलेटेड रीजन नहीं होंगे। अनट्रांसलेटेड रीजन को निकाल के बाकी जो है जो कोडिंग सीक्वेंस है दैट विल बी सीडीएस। ठीक है, and this feature include translation into amino acid and may also contain gene name, gene function, link to protein record and cross references etc. आप यहाँ पे देखें प्रोटीन आई लाइक सीरीएस में देखें ये दिया हुआ होगा और इसकी प्रॉपर्टी दी होगी और यहाँ पे प्रोटीन आईडी दी होगी। तो आप इफ यू कैन क्लिक द प्रोटीन आईडी दैट विल टेक यू टू द प्रोटीन सीक्वेंस। अब यहाँ पे ये प्रोटीन सीक्वेंस ट्रांसलेशन भी दी हुई है। तो so translation product जो है that has been given there। ठीक हो गया, and after that intron is given। यहाँ तक ठीक है? कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट टू रेज और समथिंग, एनी कंफ्यूजन? Everything is clear? Tuba is there, Tuba? Tuba Asad. उमेमा आवाज आ रही? उमेमा? जुनेरा? आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Tuba, why don't you answer? Tuba? इसके बाद अगर मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ। If you don't आप सिर्फ क्लास में अटेंडेंस के लिए आए हैं तो मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, डोंट यू वरी। मैंने चैट भी ओपन किया हुआ है जस्ट इस वजह से कि इफ यू couldn't answer on the chat on mic, so you can do chat, chat में भी बता सकते हैं।
but I'm worried कि like okay Tuba, it's okay, your mic has problem, okay. And फरीन खुरम आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके एंड सो कोई कौन बताएगा कि सीडीएस एक्सॉन और इंट्रॉन में क्या फर्क होगा और जीन में? सर मैं बता देती हूँ। जी जी बताएं प्लीज। आपने बताया था कि जो जीन होता है उसमें सीक्वेंसेस होती हैं, मतलब वो स्टार्ट और एंड ऑफ जीन की, लेकिन जो एक्सॉन होता है उसमें 5 प्राइम और 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड जीन की भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर। और जो सीडीएस है सर, वो सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन्स भी होती हैं, जो वो न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रोटीन को कोड करते हैं। और इंट्रॉन अभी पढ़ा नहीं है। अच्छा, इंट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ देखें, एक जीन के अंदर आपको इंट्रॉन्स भी मिलेंगे, एक्सॉन्स भी मिलेंगे, सीडीएस भी मिलेंगे। इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग रीजन्स होंगे? नहीं, इंट्रॉन्स जो है वो स्प्लाइस आउट रीजन्स होंगे, स्प्लाइस आउट रीजन्स। हाँ, नॉन कोडिंग है, लेकिन फिर उसमें हम डिफरेंशिएट करना है बिटवीन यूटीआरस में भी डिफरेंशिएट करना है ना। तो जो स्प्लाइस आउट हो जाएं, ठीक है, स्प्लाइस आउट होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स रह जाएंगे एक जीन के अंदर, ठीक है। मींस जीन वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। नाउ द इंट्रॉन्स हैज बीन रिमूव्ड, वो रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएंगे, एक्सॉन रह जाएंगे। सो एक्सॉन्स जो हैं, अब इसके बाद उस पे राइबोसोम वर्क करेंगे तो प्रोटीन बनाएंगे। तो सारा का सारा एक्सॉन जो है वो प्रोटीन नहीं बनाता, उसका कुछ रीजन जो है वो अनट्रांसलेटेड भी रह जाता है, ठीक है। जो ट्रांसलेटेड रीजन होगा उसको हम सीडीएस कहेंगे। समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and next is जी बताएं जी उसामा। मैं अच्छा उसामा, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, किसी और को अगर समझ आई है उसामा की बात की तो मुझे प्लीज बता दें, क्योंकि नहीं सर, आवाज कट रही थी। कट रही है, ठीक है। अच्छा उसामा, आप उसमें चैट में लिखते हैं, चैट में लिखें, आई विल चेक दैट आउट। ओके उसामा, प्लीज आप चैट में लिखें, आई विल चेक दैट आउट। ओके, एंड इंट्रॉन जो है that is transcribed are spliced out parts and this will be ये ट्रांसक्राइब तो होंगे, मींस डीएनए से आरएनए में आ जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि ये स्प्लाइस आउट हो जाएंगे। इंट्रॉन नंबर आर शोन, इंट्रॉन के नंबर दिए जाते हैं, मींस इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डीएनए का सीक्वेंस है तो उसमें इंट्रॉन्स भी शो होंगे। सो poly A signal that identifies the sequence portion required for endonuclease cleavage of an mRNA transcript। मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट में एक poly A signal होता है, उस poly A signal वहां पे क्या होता है, क्लीवेज होती है, endonuclease क्लीवेज होती है वहां पे, and that sequence the consensus sequence of poly A signal is AAT-AAA। so ये जो है, this sequence is a poly A signal। polynucleotide adenyl transferase will then add poly A tail। यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी इस पोली ए सिग्नल जहाँ पे है, यहाँ पे क्लीवेज होने के बाद फिर पोलीन्यूक्लियोटाइड एडिनाइल ट्रांसफरेज आएगा, उसने पोली ए टेल ऐड कर देना है वहाँ पे, ठीक है। एंड दिस विल बी लाइक वन मैसेंजर आरएनए गो टू मैच्योरेशन। सर ये जो पोली ये टेल ऐड होती है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में ऐड होती है ना? पोली ए टेल जो है वो यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है। सर क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था उसमें सिर्फ जो पोली ए टेल है वो
ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसमें यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में ऐड होती है, क्योंकि उसने ट्रांसलेशन में आगे फैक्टर के हाँ साथ ज्वाइन करना हाँ होता है। हाँ बिल्कुल। सो वायरसेस के केस में भी देख लें, पॉली ए टेल इज बाइंडिंग देयर, पॉली ए टेल इज फॉर्म देयर। सो है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जिसमें नहीं है। ठीक ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, सो पॉली ए टेल लाइक वहां पे बाइंड करेगा पॉली ए टेल के बाद। अच्छा तो ओपन रीडिंग फ्रेम जो है, ओपन रीडिंग फ्रेम इज एक्चुअली द सीडीएस। ठीक है, सो ओपन रीडिंग फ्रेम और सीडीएस सेम चीजें हैं। समझ आ रही है? उसामा का क्वेश्चन था कि पॉली ए सॉरी सीडीएस और ओपन रीडिंग फ्रेम में क्या फर्क है? तो सीडीएस और ओपन रीडिंग फ्रेम जो है दे आर सेम। ठीक है जी जी। एंड नेक्स्ट इज बेस काउंट। सो वो क्या है, लाइक जितना भी सीक्वेंस है तो वो बेस काउंट यहाँ पे दिया होगा कि 1510 एज है, उसमें 1074 सी है, 835 जी है, 1609 टी है इसमें। सो ये बेस काउंट भी दिया होगा। So base count gives the total number of adenine, cytosine, guanine, and thymine bases in the sequence. And यहाँ पे origin दिया होगा. What is actually origin? So origin contains the sequence data which begin on the line immediately below the title field. So origin के बाद sequence शुरू हो जाएगा कि जो original sequence हम सबमिट कर रहे थे वो sequence है क्या. So वो इस तरह का पूरा sequence दे दिया जाता है. तो आप अगर इसको देख लें तो 1 to 50 जो है वो यहाँ पे, 1 to 60 जो है वो यहाँ पे दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। सो 10 बेसिस के जो ब्लॉक्स हैं वो बनाए जाते हैं, 10 बेसिस, फिर उसके बाद स्पेस, फिर 10 बेसिस, फिर स्पेस 10, फिर स्पेस एंड सो ऑन। तो ये 50 तक हो, 60 तक हो जाएंगे, तो ये 61 फिर यहाँ से शुरू होगा, एंड फिर ये 120 हो जाएंगे, 121 यहाँ से शुरू होगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ द सीक्वेंस इज गिवन देयर। So, and next is cross references to sequence databases. So क्रॉस रेफरेंसेस भी दिए जाते हैं सीक्वेंस डेटाबेसेस को। अगर अभी तक जो हुआ है ना, मैं अगर थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सीक्वेंस हम किस तरह निकाल सकते हैं। आपको स्लाइड शेयर, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो सबसे पहले मैं कोई असल में एक प्रैक्टिकल को एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि किस तरह हम सीक्वेंस को देख सकते हैं। जस्ट लाइक आई राइट देयर एनसीबीआई, एंड एनसीबीआई में लिख देता हूँ, एनसीबीआई साइट पे मैं जाऊंगा। सो दिस इज द एनसीबीआई साइट। यहाँ पे मैं फॉर इंस्टेंस लिख देता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी वायरस का नाम, HCV, या कोई भी सीक्वेंस का नाम हो। ठीक है, तो सीक्वेंस हो, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे रेफरेंस सीक्वेंस मिल जाए। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हेपेसी वायरस सी रेफरेंस जीनोम, तो इसको अगर मैं रेफरेंस जीनोम को क्लिक करूंगा तो ये आ गया हेपेटाइटिस सी वायरस जीनोटाइप 1 कंप्लीट जीनोम। सो एंड दिस इज एक्चुअली द रेफरेंस सीक्वेंस, और ये आप रेफरेंस सीक्वेंस नजर आ रहे हैं आपको एनसी, और एंड दिस इज 0.1। तो इसका मतलब है कि ये मॉडिफाई नहीं हुआ, 0.1 के बाद ये नहीं हुआ। यहाँ पे आपको शो होगा कि दिस इज द एक्सेशन नंबर, and this is the length of the sequence 9646, and this is single stranded RNA, linear है, और ये जो है ये इसका इसकी सबमिशन डेट है, हेपेटाइटिस सी वायरस जीनोटाइप, एंड दिस इज वर्जन, एंड दिस इज ये कुछ डेटाबेस के लिंक्स दिए हुए हैं, एंड कीवर्ड्स में रेफरेंस सीक्वेंस लिख दिया है जस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि जिस पेपर में ये इसको पब्लिश किया हुआ है वो ट्रिपल डिकोडिंग ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए बाय प्रोग्राम ट्रांसलेशन फ्रेम शिफ्टिंग, एंड इसके बाद ये कुछ और जर्नल्स के भी इन्होंने वो दिए हुए रेफरेंसेस दिए हुए, मल्टीपल रेफरेंसेस। और यहाँ पे अगर आप देखें, सो यहाँ पे देखें 5' UTR दिया हुआ है, इसके बाद जीन को दिया हुआ है कि जीन यहाँ से शुरू होगा,
जीन में फिर इन्होंने CDS का दिया हुआ है, ठीक है। तो CDS को अगर आप देख लें तो CDS का कोई प्रोटीन आईडी भी दी हुई, इस प्रोटीन आईडी को जब हम क्लिक करेंगे तो वी विल गेट लाइक प्रोटीन सीक्वेंस, लाइक मैंने इस आईडी को क्लिक कर दिया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाँ, तो मेरे पास देखें पॉलीप्रोटीन हेपेटाइटिस सी वायरस की पॉलीप्रोटीन जो है वो मेरे पास, आई विल गेट दैट, और एंड पे जाके आपको देखें यहाँ पे ये प्रोटीन सीक्वेंस आपको नजर आएगा कि दिस इज प्रोटीन सीक्वेंस एंड दैट्स इट। लेकिन अगर मैं दोबारा उस सीक्वेंस में जाऊं, हाँ इस सीक्वेंस में जाऊं, आई डोंट नीड द ट्रांसलेशन प्रोडक्ट, सो ये पेप्टाइड है सीक्वेंस एंड ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं कि ये इन्वेलप प्रोटीन है, दिस इज कोर प्रोटीन, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कोर प्रोटीन लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो कोर प्रोटीन मुझे दे देगा, यहाँ पे इन्वेलप है, यहाँ पे जो पॉलीप्रोटीन का ये जो E2 है, इन्वेलप 1 E1 E2 एंड सिमिलर इज दैट। एंड पे जाके ये पूरे वायरस का सीक्वेंस है, ये पूरे वायरस का सीक्वेंस है, यहाँ से शुरू होके 1 से शुरू होके, और ये देखें कि 9600 समथिंग का सीक्वेंस है पूरा, ठीक है। सो दिस इज द होल सीक्वेंस, और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो है वो सारी दी होंगी सारी इंफॉर्मेशन, एंड दैट्स इट। ठीक हो गया? Yes, sir. Is it clear to everybody? Yes, sir, Yes. clear. हाँ, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खैर मैंने बेस्ट काउंट आपको दिखाया नहीं है, लेकिन आप दोबारा जाके एक दफ़ा देख लें तो आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक हो गया? सो origin contain the sequence data, ये सीक्वेंस पूरा सीक्वेंस जो है वो origin में आपको नजर आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज if a sequence submits a sequence to the MBEL, GenBank or DDBJ present some discrepancies with the canonical sequence